मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम में सिलचर के पास डोलू चाय बागान की जमीन का अधिग्रहण कर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की। इसी मुद्दे पर मैं लगातार चर्चा करता रहा हूं, लगातार आपको दिखाता रहा हूं। इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा मजदूरों के हौसले बुलंद हैं। काम से लौटते हुए प्रतिकूल मौसम और बारिश में भी नारे लगा रही हैं महिला मजदूर प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच कई नई बातें हुई है, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें पहला तो ये है कि अब इलाके के 4 विज्ञान और पर्यावरण संगठनों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है। दूसरी ओर पहली बार राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के ऊपरी असम के एक विधायक तेरस ग्वाला ने इस मुद्दे पर डोलू चाय बागान मजदूरों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो वे इस मुद्दे पर सड़क पर उतरेंगे। इससे सरकार के लिए थोड़ी विचित्र असमंजस वाली स्थिति पैदा हो गई है। पहली बार किसी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और विधायक ने इस परियोजना और इस समझौते पर सवाल उठाया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की नेता और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने भी इस मुद्दे को कटघरे में खड़ा करते हुए मुंह खोला है, पहली बार इस मुद्दे पर बोली है और गोपनीय समझौते को कटघरे में खड़ा किया है और इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आज चर्चा करूंगा इन्हीं तमाम मुद्दों की। देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। अभी आपको इसके बाद मैं दिखाऊंगा किस तरह अलग अलग इलाकों में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। डोलू बागान में भी प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है, बाकी चाय बागान इलाकों में भी उनके समर्थन में प्रदर्शन, धरना वगैरह आयोजित किया जा रहा है। চলে আসো, একজন যা আওয়াজ দিতে চলে যা। আড়াই হাজার যে বিঘার জমি যেটা এটা টোটাল চারাগাছ যতটা আছে সর্বমোট চারাগাছ 30 লক্ষ চারাগাছ আছে। এই 30 লক্ষ চারাগাছ যদি উঠাই দেয় তাহলে এখানে শ্রমিকরা আজকে যাবে কোথায়? না, ওর ভিতরে ঘর বাড়িও পড়েছে মেতে, এর মধ্যে আর ঘর বাড়ি এগুলো সব আছে ওই 2500 বিঘার মধ্যে। তো আজকে আমাদের দাবি হলো, আমরা শুধু আমরা নয়, আজকে এই দেওয়ান গ্রুপ বাদেও আজকে সারা আসাম থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছে যে আমাদের চা শ্রমিক যারা আছে এই চা শ্রমিকের যাতে কোনো ধরনের ক্ষতি না হয়, আগে ওদেরকে পুনর্বাসন করা হোক, এরপরে ওরা যেখানে খুশি ওরা এয়ারপোর্ট বানাক, আমাদের কোনো অসুবিধা নাই। আমরা ওরা এয়ারপোর্ট যদি আমাদের চা গাছ রাখে, চা শ্রমিকদেরকে বাছাই করে ওরা এয়ারপোর্ট বানায়, তার জন্য আমরা সরকারকেও ধন্যবাদ জানাবো। আজকে আমরা যা ওই কারণে আমরা এই প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আজকে এখানের মধ্যে কিছু লোভী গোষ্ঠী, আজকে লোভী গোষ্ঠীরা এইখানে কিছু আছে, যেমন আমাদের সাংসদ আমরা যাকে ভোট দিয়ে এমপি বানাইছি, ওই এমপি আছে, ওই এমপি বলছে যে আমরা ওইখানে যারা চা বাগানের শ্রমিক যারা আছে বলছে আমরা চাকরি দিব। আজকে তোমাদেরকে ওইখানে চাকরি দেওয়ার মতো কোনো উপায় আছে? আজকে তোমাদের এখানে ওইখানে যারা চাকরি পাবে পড়াশোনা কত লাগবে ওইটা আমি জানি না।
এখানে ডিপ্লোমা লাগবে, এমএ পাস লাগবে, এমএসসি পাস লাগবে, বিএসসি পাস লাগবে, আরো কত ইঞ্জিনিয়ারিং লাগবে। আর এখানে আপনাদের মতো মানুষ যারা আছে ওদেরকে ওরা বলছে কি চাকরি দিবে? এদিকে একটু চলে এদিকে চলে এদিকে যা এই সাইকেলে সরা রে যারা পাতি তুলে খাচ্ছে, যারা কলম কাটে, যারা নম্বরে ড্রেন করে, যারা সেকশনের যেগুলো কাজ যারা করে আছে, ওই সব মানুষের উপায় কি হবে? যার জন্য সারা আসাম থেকে ওর জন্য প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং বিক্ষোভ মিছিল করছি। আর বিশেষ করে আজকে ওই যে এয়ারপোর্ট, গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের জন্য ওরা যেটা ব্যবস্থা করছে, আমরা পেপারে পত্রিকায় মোবাইলে দেখছি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে কোনো ধরনের অনুমোদন আসে নাই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলছে যে আসাম গভর্নমেন্টকে বলছে যে আগে জায়গা ঠিক করে দেওয়া হোক, জায়গায় ওরা সাব্যস্ত করার পরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটার অনুমোদন দিবে বা টাকা দিবে, এরপরে এয়ারপোর্ট করা হবে। তো যখন জায়গায় ঠিক হয় নাই, এরা প্রথমে যে সময় করা হয়েছিল এয়ারপোর্টের জন্য, তখন ওরা শিলকুড়িতে প্রথম দেখেছিল জায়গা, শিলকুড়ির পরে দেখেছিল খলিল চা বাগানে, খলিল চা বাগান থেকে বাদ দিয়ে এখন ওই মালিক পক্ষ যারা আছে ওই মালিক পক্ষর সাথে মিলে ওই যে লালবাগের যে জায়গায় 2500 বিঘা জায়গা, ওইটা 500 কোটি টাকায় গভর্নমেন্ট ওই মালিকের সঙ্গে মিলে ওরা চুক্তি করেছে। এবং এই আজকে যে 500 কোটি টাকায় ওই মালিক যে চা বাগান বিক্রি করে দিচ্ছে, তাহলে আমাদের চা বাগানের শ্রমিকদের কি অবস্থা হবে? যার কারণে আমরা এই প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা এই সরকারকে বলছি যে আমাদের যেগুলো শ্রমিক যারা পাতি তুলছে, যারা কলম কাটছে, যারা ড্রেনের কাজ করছে, ওই সব মানুষের আগে পুনর্বহাল করতে হবে। ওদের डोलू चाय बागान मजदूरों के आंदोलन को पहली बार सत्तारूढ़ बीजेपी के एक विधायक का समर्थन मिला है। अब तक कुछ मजदूर संगठन और विपक्षी पार्टियां ही इस आंदोलन का समर्थन कर रही थी, लेकिन बृहस्पतिवार को पहली बार ऊपरी असम के बीजेपी विधायक तेरस ग्वाला ने सरकार की श्रमिक विरोधी नीति की खुलकर मुखालफत की, खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात कही। उनको ऊपरी असम में चाय बागान मजदूरों का ताकतवर नेता माना जाता है और उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो वे मजदूरों के साथ इस मुद्दे पर सड़क पर उतरेंगे, लेकिन इस तरह बागान से मजदूरों को उजाड़ना उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। एक सरकारी समारोह था दुलियाजान में, चाय बागान में हाई स्कूल के उद्घाटन का, उसमें मंत्री संजय किशन भी मौजूद थे। उसी मौके पर तेरस ग्वाला ने इस मुद्दे को उठाया और कहा, मजदूरों की मौजूदगी में ही कहा कि मैं देख रहा हूँ जेसीबी लगाकर डोलू चाय बागान के पौधों को उजाड़ा जा रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के नाम पर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, इससे मेरे सीने में जलन हो रही है। किसी भी परियोजना के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। क्या सरकार को हर परियोजना के लिए चाय बागान की ही ज़मीन लगेगी? तो ऐसे में हमारे मजदूर भाई बहन कहाँ जाएंगे? तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। उसके अलावा उनका कहना था कि ज़रूरत पड़ी चाय बागान में हमारी आत्मा बसती है, मज़दूरों की आत्मा बसती है, उसमें हमारा खून पसीना लगा हुआ है। अब ऐसे पौधों को चाय के उजाड़ने पर हमारे सीने से खून बहने लगता है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अपने हक की लड़ाई में, अधिकारों की लड़ाई में अगर मजदूर सड़कों पर उतरते हैं तो मैं भी उनके साथ उतरूंगा, क्योंकि उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी ओर इधर जैसा कि मैंने आपको बताया, कई संगठनों ने भी इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि सिलचर में डोलू चाय बागान की ज़मीन का जिस तरह अधिग्रहण हुआ है, यह पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। और ये 4 संगठन हैं, मार्च फॉर साइंस, ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी, पीपुल्स साइंस सोसाइटी और आरण्यक संस्था है। इनकी ओर से साझा बयान जारी किया गया है। उनमें कहा गया है उसमें कि जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसकी वजह से लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, वैसे में यह घटना, एक हरे भरे बागान को उजाड़ने की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जलवायु परिवर्तन के कारण
असहनीय गर्मी पड़ रही है तो फिर असमय ही बाढ़ आ रही है। ऐसे में जिले से कई लाख हरे पौधों को उजाड़ना किसी भी तरह पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के हित में नहीं है, बेहद नुकसानदेह है। उन्होंने कछार के जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया है और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है इस मामले में। उनको उस ज्ञापन में सवाल किया गया है कि क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दी है और जितने तादाद में पौधे उजाड़े गए हैं उतनी तादाद में दूसरी जगह पौधे लगाए क्यों नहीं गए। तो आखिर इसका डोलू और आसपास के इलाके के लोगों पर कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्या इसका कहीं कोई अध्ययन किया गया है और क्या विशेषज्ञों की राय ली गई थी पौधों को उजाड़ने से पहले। उन्होंने ईमेल से प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजा है संगठनों ने और उनसे इस मामले में फौरन हस्तक्षेप की मांग की है, हस्तक्षेप का अनुरोध किया है ताकि पौधों को उजड़ने से, हरियाली को उजड़ने से बचाया जा सके, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और इसके अलावा जो तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं और सुष्मिता देव हैं, उन्होंने भी पहली बार मुंह खोला है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी मंजूरी के ही, पर्यावरण की मंजूरी के ही यह परियोजना आगे बढ़ाई जा रही है और हजारों पौधे उजाड़ दिए गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में असम सरकार को भी आड़े हाथों लिया है और उनको कहना है कि सरकार ने इस समझौते को गोपनीय रखा, प्रशासन ने गोपनीय रखा। जमीन अधिग्रहण की नोटिस समय रहते दी जाती है, पहले दी जाती है और अखबारों में दी जाती है, लेकिन किसी अखबार में इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई पहले डोलू चाय बागान के जमीन अधिग्रहण की। तो आखिर सरकार क्यों छिपा रही है, क्यों इसे गोपनीय बना रखा है। और फेसबुक पेज पर भी इसे कम से कम दे दिया जाता। इसके अलावा धारा 144 लागू है, बागान में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और तमाम चीज़ें हैं। NTUI जो है केंद्रीय ट्रेड यूनियन, उसके राज्य अध्यक्ष मानस दास ने भी बयान जारी किया है और कहा है कि मजदूरों के हक में उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कई अन्य संगठन भी सामने आ रहे हैं और जैसा कि आपने देखा, पहली बार बीजेपी के एक नेता ने भी मजदूरों के आंदोलन का समर्थन और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना के लिए हरे भरे बागान को उजाड़ने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। और आगे क्या अपडेट होता है मैं आपको नियमित बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।